Every year, Jamia Hamdard is celebrating their sports and culture week uh, in the month of generally February or March. Today, we have inaugurated our first day of our sports and cultural week. The whole week, our students for all the school will participated in sports activity as well as cultural activity. On 25th or 26th, we have annual day program for sports. This time we are celebrating two different annual days for sports. On 25th and 26th is for cultural function where the chief guest will come and distribute their prize. So this is our program as per the sports and culture week, and the dean student welfare team is already involved in all the activities and they are coordinating. And today we are we present in the field to inaugurate our sports activity, and we are very happy to see the way our team has organized the inaugural function. Thank you. We are celebrating the Sports and Cultural Week 2024 from 19th of February to the 26th of February. We have a plethora of events in both the literary category as well as the sports category. So, in the literary events, I'll just tell you that we have the literary activities, including story telling, story writing, poetry competitions, extempore, etc. Then we have got the creative events wherein we are going for calligraphy, we are going for rangoli, etc. And then we have got the musical events wherein we have solo songs, duet, we have got ghazal, we have got lots of activities here. This year we have included three activities on the suggestion of our sponsors HNF Hika, and the CEO Mr. Sajid Sahab has suggested these three activities. First is the logo design of Jamia Hamdard, that can be done graphically, it can be done by drawing, so it is in a hybrid mode. And then we have a story writing competition which has been introduced for the first time. Previously we used to have essay only, now this time essay as well as the story writing, and here the story writing would be original stories. The student has to conceptualize a story and then write it. It's a short story writing competition. And then we have got a photography competition. The photography competition will depict the life at Jamia Hamdard. So we have got a link on the university website wherein the students can upload three photographs related to life at Jamia Hamdard and how they perceive their life here. So these were the creative and the literary events. And then in the sporting events we have got all the events have got teams participation from all the 10 schools of Jamia Hamdard, and for all the games, whether it be football or cricket, we have got girls team as well as boys team. So we had the inaugural today, and you can just have a glimpse of the kind of participation and enthusiasm being depicted by the students there. I will just take this opportunity to thank my team, which has been working very, very diligently round the clock. That would include my deputy DSW, Dr. Uzma Bano, the cultural coordinator, Professor Khurshid Ansari, our sports secretary, Professor Sohrab Ali Khan, and all the conveners and the co-conveners. I cannot just name them right now because the list is huge. We have got a huge team and we have all done all this, and I hope with every day you'll find that the coordination and the efforts being put in the games and the play and the organization is humongous. And this has all been possible through the very, very unfailing support of our honorable vice chancellor sir, who gives us enough freedom to take on decisions, and all the support given by our registrar sir, Dr. M.A. Sikandar. So it's
It's a pleasure organizing this for the student community, and through all the 6 day events that you'll see that Jamia Hamdard is not only alive, it is alive and kicking. And enjoy all the events. My best wishes. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं डिप्टी DSW डॉक्टर उज़मा बानो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इल्मुल अत्फाल यानी पीडियाट्रिक्स, स्कूल ऑफ फ्यूनरी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सुमेर, जामिया हमदर्द। तो हम लोगों का ये इवेंट या इस स्पोर्ट एंड कल्चर फेस्ट 2024 जो आज शुरू हुआ, यानी 19 फरवरी से 26 फरवरी तक है, और इसमें हमारा सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, सभी बच्चे इसमें। अगर आप रेशियो की बात करें कि बॉयज़ और गर्ल्स की, तो मैं कहूँगी कि बल्कि गर्ल्स का ज़्यादा रहता है पार्टिसिपेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद गर्ल्स कम खेलती होंगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चेस की एग्जांपल दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उसकी प्रेसिडेंट थी। चेस एंड कैरम क्लब जो है हमारा, यहाँ पे हम लोगों के 11 क्लब हैं और हर क्लब का एक प्रेसिडेंट है जो कोऑर्डिनेट करता है। और अब इस इवेंट के लिए हम हर क्लब के लिए हर स्कूल से उनके कोऑर्डिनेटर्स भी बना देते हैं, और फिर उसके कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं मेंबर्स बन जाते हैं। तो उस तरीके से हम लोग इसको मैनेज कर पाते हैं। आज जैसे हमारा इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन में हमारे स्पॉन्सर मिस्टर साजिद साहब COE वो आए, हमारे प्रोफेसर अबशार साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं। इन लोगों की क्योंकि पूरा सपोर्ट एनकरेजमेंट हमारा कदम कदम पे इन लोगों का रहता है हमारे लिए, तो काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को करने के लिए। तो बात कर रही थी पार्टिसिपेशन की, चेस की, तो उसमें हमें था कि शायद बॉयज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन इत्तेफाक ये था कि पिछली बार की मैं बात करूं तो मेरे 485 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था चेस एंड कैरम में, और चेस में बराबर का पार्टिसिपेशन था गर्ल्स एंड बॉयज़ का, और गर्ल्स ज़्यादा अच्छी खेली अगर हम कंपेयर करें बॉयज़ से। तो हर गेम में हमारी गर्ल्स टीम की क्रिकेट टीम भी है जो हमारे यहाँ है और जो बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा खेलती है। तो सभी गेम्स में सारे लिटरेरी क्लब हैं और कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, सभी चीज़ें हमारे यहाँ चलती रहती हैं। इस बार हमारा एक एडिशन भी हुआ 3 चीज़ों का, जिसमें शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है और लोगो डिजिटल और मैनुअल जिस तरह से चाहें उसका एडिशन किया। तो कुछ चीज़ों का एडिशन भी हुआ और बाकी सारे हमारे गेम्स चल रहे हैं, उन्हीं का हम लोग और हमारी कोशिश होती है कि हर स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करे, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे और हर कोऑर्डिनेटर है। तो अपनी अपनी जगहों पे इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट चल रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। उधर हमारे यहाँ कुछ और भी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं जो पहले से प्लान थी ऑलरेडी, जैसे कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है जिसे हम CME कहते हैं मेडिकल में, वो हमारे स्कूल में आज से शुरू हुई। तो कहना है कि हमारे यहाँ सभी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और सभी चीज़ों में लोगों का पूरा पार्टिसिपेशन है और पूरा हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका पूरा हमें एनकरेज करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए चीज़ें करने में और उसमें बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी अथॉरिटीज़ का, प्लस अपने मेरे कुलीग्स जो हैं जिनकी उससे हम लोग ये कर पाते हैं मेहनत से, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स जो हम लोगों के लिए एज ए वॉलंटियर भी काम करते हैं, एज ए पार्टिसिपेंट भी काम करते हैं। तो मैं सभी टेक्निकल स्टाफ है हमारा, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कहीं ना कहीं हर कदम पर सभी का पूरी यूनिवर्सिटी का सपोर्ट रहता है। तो मैं एज ए डिप्टी DSW सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और चाहूँगी कि ये इस तरह का हम लोगों का जो सिलसिला चलता है ये जारी रहे और नेक्स्ट ईयर हम हर साल इसे और अच्छा कर पाएँ, क्योंकि इस साल हमने कोशिश की है कि बहुत अच्छा करने की। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगी। शुक्रिया।
आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर खुर्शीद अंसारी, जो कि जामिया हमदर्द के कल्चरल कोऑर्डिनेटर है। तो सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि 2024 में जो हमारा कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तो इसके इवेंट्स को लेकर आपके मतलब क्या इस बार आपने क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किए और पिछले बार से क्या उन्नति हुई है इस चीज़ में? ओके, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आप इस फेस्टिवल को या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 24 को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जामिया हमदर्द को एक वाइड स्प्रेड स्कोप मिले, स्पेस मिले। मैं कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते यूनिवर्सिटी का आप सभी लोगों की तरफ से जामिया हमदर्द के उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तकबाल करता हूं जिन्होंने कल्चरल इवेंट्स को इस बार बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेशन दिया है। जहां तक कल्चरल इवेंट्स का सवाल है, पिछले सालों के मुकाबले में इस बार हमने 3 नए इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे लोगो मेकिंग डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा फोटोग्राफी कंटेस्ट है, इसके अलावा हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बार बच्चों के नंबर्स कम से कम 3 फोल्ड्स ज़्यादा बढ़े हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ गया। जी 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 जी। सो दैट शोज दैट दे आर टू मच enthusiastic and that was our target to engage all the students कि वो पढ़ते पढ़ाने के दौर से थोड़ा सा बाहर आएं और अपने अंदर जो उनकी हिडन पर्सनालिटी में टैलेंट्स हैं उनको शोकास कर सकें। सो अभी मैं आप चाहें तो एक लाइव इवेंट को कवर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ नर्सिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कार्टून कैलीग्राफिक टैलेंट का मुजाहरा तकरीबन 38 बच्चे कर रहे हैं। दे आर कैलीग्राफिंग हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो सर, पार्टिसिपेशन में मतलब रेशियो क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स? मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जामिया हमदर्द इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जहाँ पे लड़कियों की तादाद बच्चों के या तो इक्वल है या कई कोर्सेज में बहुत ज्यादा है, 60-40 के हिसाब से। सो उस हिसाब से अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दैट इज फ्रॉम द गर्ल साइड। ये थोड़ा सा हमें दुख होता है कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं, जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जैसे कि कैलस हैं या इग्नोरेंट हैं या वो बहुत ज़्यादा इंथुसियास्ट नहीं है कि वो इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, जबकि हम लोग बड़ी दिन रात की मेहनत के बाद डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हमारे रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब, डिप्टी डीन स्टूडेंट वेलफेयर और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करने का ये जो मौका दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल करें। ओके, थैंक यू सर। तो भाई और बहनों, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सोहराब अहमद खान, जो कि है स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। तो हाँ, आज हम इनसे आज का मेन टॉपिक पूछना चाहेंगे कि पार्टिसिपेशन कैसा चल रहा है स्पोर्ट्स में। आपने जैसे सुना कि कल्चरल में गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखा गया है, तो इस बार हम देखेंगे स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा इस ग्राउंड में कि हमारे यहाँ यू गेटिंग, आपको बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ी होंगी ना। तो हमारे यहाँ जब से मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना तो मैंने पहला इनिशिएटिव ये लिया कि हमारे यहाँ पे जब वी हैव इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज तो दे शुड प्ले इक्वली। तो हमारे यहाँ चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, उसमें लड़कियों का लड़कों का परसेंट बराबर है, बल्कि कुछ गेम्स में गर्ल्स ज़्यादा, जैसे एथलेटिक्स में है उसमें गर्ल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, है ना। तो हमारा मोटिव था कि हमारी जो मोदी जी का विजन है कि हमारी लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें, तो हमारे वाइस चांसलर साहब का विजन यही है कि हमारे साथ जो लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी में, आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जामिया हमदर्द काफी गर्ल्स मुस्लिम, लेकिन दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द इवेंट as compared to boys and they are not lesser than the girls. Okay. तो जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स में भी रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस साल की पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ी चल रही है कल्चरल में भी और स्पोर्ट्स में भी। सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। आज का पहला डे था और आज नॉकआउट्स इवेंट्स है, तो नॉकआउट्स में मतलब अभी सारे मैचेस आज के हो जाएंगे, फिर कल फिर परसों तक फाइनल इवेंट्स होंगे, राइट? नहीं, हमने बच्चों को पूरा मौका खेलने का दिया है, हमने नॉकआउट नहीं रखा। हमने सारे हमारे जो डिफरेंट स्पोर्ट्स क्लब हैं, अच्छा, उनके जो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, दे हैव लीग, है ना। अच्छा, पहले हम लीग कर रहे हैं, तो नया चेंज है पिछले बार से। वी हैव 4, लाइक हमारे यहाँ कुल 12 स्कूल हैं, तो हर स्कूल के हमने क्या किया, वी हैव डिवाइडेड इनटू 4
तो एक ग्रुप में 3 टीमें हैं एंड दे विल हैव मैच फ्रॉम ईच एवरी टीम। फिर एक ग्रुप से 2 टीम निकलेगी, देन वी विल हैव क्वार्टर फाइनल एंड देन सेमीफाइनल एंड फाइनल ना। तो हर टीम को कम से कम 3 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। तो नॉकआउट्स नहीं है इस बार। नॉकआउट नहीं है। तो ये पिछले बार से बहुत ही बड़ा अपडेट है। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अभी बात करके आ रहे हैं सारे के सारे स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स कोऑर्डिनेटर सर्स के साथ, मैम के साथ, और बात करने से ये बात तो पूरी तरीके से पक्का हो चुका है कि गर्ल्स पार्टिसिपेशन बॉयज़ पार्टिसिपेशन से बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद रखते हैं 2020-24 में आप सभी लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा स्पोर्ट्स एंड इवेंट कल्चर में। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट पे, बने रहे मेरे साथ आकिफ रिजवान सर।